What's up, sister? Hi guys, I'm Kritika. Hi, I'm Diksha. Welcome to the podcast. What's up, sister? Guys, before we get into the podcast, we just want to let you know that What's Up, Sister is Spotify exclusive, which means our podcast is only available on Spotify. और guys, अगर आपको वीडियो में देख के लग रहा हो कि थोड़े से टायर्ड, आई थिंक दीक्षा इज नॉट फीलिंग वेल एंड दीक्षा को ज़बरदस्ती में सुबह उठा के ले आई हो. यूजुअली दीक्षा वर्क्स अराउंड दोपहर को हम ज़्यादा वर्क करते थे साथ में, बट वी आर ट्राइंग टू चेंज आवर रूटीन एंड She is trying to change her routine. I am just stuck on my routine because I know it's Diwali season and I won't be able to wake up early. busy with Diwali parties, guys. Diwali cards parties. Yes. In this video, we are going to do something different. So, there's a channel called Jubilee. उस पे ना there are 36 questions that lead to love and उस पे couples हैं. I don't know how it's going to work for sisters or friends, but let's see. अगर general questions होते हैं तो हम आंसर करते हैं, ठीक है? अगर सिसी ऐसे ऐसे questions हुए जो already हमें पता है, फिर मुझे लग रहा है वही होंगे. हाँ चलो let's try. We'll switch to something else. और गाइस किसी ने प्लान भी देखी है? हाँ प्लान भी मूवी नेटफ्लिक्स पे जो आई है. मैंने देखी है ना. हाँ तो हम देखिए, पूछ रहे हो गाइस, जिसने भी देखी है, हम दोनों ने भी देखी है. एंड हाउ वाज द मूवी अकॉर्डिंग टू यू? आई थिंक थोड़ा सा स्ट्रेच किया गया था But it was उसको मूवी का. इट वाज क्यूट बट मुझे ऐसा लग रहा था क्रिस्प हो सकती थी और हाँ. बेटर हो सकती थी और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच कर गया था. बट मुझे तमन्ना की एक्टिंग काफी अच्छी लगी. हाँ, रितेश देशमुख की तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कॉमेडी कर रहा है. सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो इंटरव्यू ले रहा है वो पूछ रहा है उनसे, हाउ डू यू फील एट दिस मोमेंट? आई फील Grumpy. No. grumpy. morning started on a very bad note, but not bad note but irritating note. Papa and I had a fight over declothing. But yeah, overly उसको aside रखकर I'm feeling okay, normal. Yeah. And how are you feeling? Oh. सिसी आप भी हो इसको इसमें. I'm mixed emotions. I think अभी I'm still trying to get back मतलब on this routine. तो मेरे को माइंड में ना ये रहता है फटाफट ये खत्म करना, ये करना है, फिर ये करना है. And we have something planned for today. I'm really excited for that. Yeah. Evening में होने वाला है. So I just want. Don't jinx it. हम नहीं बताएंगे. I'm very excited for Yes. Kritika. Once it gets Finally. done. Yes. Once it gets done, I'll obviously share it with you guys. But मेरे माइंड में ना ऐसे चेकलिस्ट बनी हुई है कि अभी 2 बजे तक खत्म करना है, जल्दी चलना है, ये करना है, वो करना है, फिर मुझे वहाँ जाना है. तो बस मेरा जब तक वो पैटर्न उस पर चलता रहता ना तब तक ठीक रहता है. थोड़ा सा भी इधर उधर स्विच होता ना तो मेरा हो जाता. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर आर यू? वुड यू लाइक टू बी फेमस? Yes, I am famous already. क्या कौन सा है वो सॉन्ग? कौन सा है? I am rich. I am that rich. है वो वाला? पता नहीं कौन सा सॉन्ग Kanye, I wanna थोड़े be like Kanye. हाँ बट बस दिस इज योर आंसर. आई एम Yeah. फेमस. ठीक I है. am famous. And would you like to be famous? Sisi, I think I am. If I would like to. Last podcast सुन के मुझे ऐसे लगा. People are so into your life. Everybody Especially knows the about haters. you. Especially the haters. So you are pretty famous, Sisi. Yeah. But ये क्वेश्चन है नहीं इसमें. अगर तेरे को फेम और मनी में 2 ऑप्शन में से कोई दिया जाए तो क्या लेगी? Money. I think I'll also take money. Money. I won't take fame because fame comes with The lots of criticism pros as and well. cons. Yeah, and I feel once you get very famous, so there are so many people who envy your life as well. So बहुत ज़्यादा opinions हो जाते हैं आपकी life पे. But if you're earning money and आप इतने famous नहीं हो, you'll अपनी life में आप खुश रह सकते हो and you'll live in your own small world. Yeah, and I think ये मैंने ना personally ये वाला जो मतलब people knowing me or fame whatever you wanna call it, I manifested this in my life because I still remember अभी 10th 11th में ना I think I wrote a note. उसमें एक financial goal था. एक ये था कि I wanna inspire people. Yeah, and I think if fame is such a bad word because वो ना मुझे ऐसा लगता है बड़े सारे गलत लोगों से भी associated है. Exactly. So I would want to be known for something nice, positive. Before making a telephone call, do you ever rehearse what you're going to say? Why? Sometimes when it's a confrontation, so obviously I rehearse sometimes कि अच्छा ठीक है, I'll say it like this, or when I'm going to say no to something. For these 2 things. You? I always do. मेरा इंट्रैक्शन वाला साइड आई वोंट नेम इट अगेन एंड अगेन बट या आई एम सोशली एंग्शियस. तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है वो ये क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है. तो इसलिए ना इधर आई अवॉइड कॉल्स कम्प्लीटली. मतलब मैं बिल्कुल जोन आउट हो जाऊंगी. और वेन एवर लाइक इट्स
ऐसा होता है ना कि यू हैव टू टॉक टू समवन, आई मेक श्योर दैट मैं अपने माइंड में 10-15 बार पहले बोल रही हूँ, अच्छा मैं ये बोलूंगी ऐसे पूरी वही कॉन्वर्सेशन। कॉन्फ्रंटेशन जब होगा या फिर कुछ होगा तभी तू भी रिहर्स करती होगी ना? नहीं, नॉर्मल हाय या नॉर्मल हाय हेलो। हाँ, पता नहीं अब मुझे ना ऐसा लगता है वो ऑकवर्ड साइलेंस आने नहीं देना चाहती मैं, पता नहीं मुझे बड़ा वियर्ड लगता है, मुझे लगता मेरे है को भी ऐसा लगता है ना हम बोर कर रहे हैं किसी को। मैं यही बोलने है ना? वाली थी, यही बोलने वाली मेरे को थी। भी लगता है। आई रियलाइज दिस थिंग विद अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड इट नेवर हैपेंस विद कृतिका। व्हेन कृतिका एंड आई सिटिंग अलोन, कभी नहीं होता कि हम दोनों को एक दूसरे के लिए ऐसे बर्डन फील होता, बोर ना कर रहे हो, मुझे कभी भी नहीं होता। बट मतलब ये वाला सिनेरियो हमेशा मेरे फ्रेंड्स वगैरह के साथ होता है। एंड रिसेंटली रियलाइज दिस विद अ फ्रेंड, हम लोग कार में थे एंड देयर वाज दिस साइलेंस एंड सब चुप थे, बट मुझे ऑकवर्ड लग रहा था कि यार मेरी वजह से वो लोग बोर हो रहे हैं। बट फिर मुझे रियलाइज हो नो दे आर आल्सो साइलेंट, वो लोग भी कुछ नहीं बोल रहे। मे बी वो स्पेस सबको पसंद होती है, लाइक टू बी साइलेंट, और वही सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है व्हेन यू कैन सिट लाइक क्वाइटली और साइलेंटली विद अ पर्सन। दैट इज द मोस्ट कंफर्टेबल थिंग यू कैन एवर डू। बोलते हैं ना साइलेंस, जब तक आप मतलब आपके रिलेशनशिप में अगर आप दोनों साइलेंटली एक दूसरे के साथ रह सकते हो देन। बट मैंने बहुत ज़्यादा ऐसा, जो ये छोटी सी जो जहाँ अभी मैं 2-3 दिन के लिए गई थी, मैंने बहुत ज़्यादा कॉशियसली उस चीज़ पे वर्क करा है कि मेरे को क्यों किसी को खुश करना है, यू नो। मुझे समझ नहीं आता ये इनबिल्ट कहाँ, मतलब जैसे कुछ लोगों में नहीं होता बिल्कुल भी। अब आई हैव आल्सो रियलाइज दिस रिसेंटली ओनली, मुझे पता था पहले से भी, बट जैसे अभी यूजुअली मैं अभी फ्रेंड्स और सबसे मतलब आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ बिजी एंड ऑक्यूपाइड, इधर आई एम टॉकिंग टू समवन, गोइंग आउट, जिम और एनी, मतलब आई ट्राई टू ब्लॉक माई टाइम। तो मैं ज़्यादा इंटरेक्ट कर रही हूँ आजकल लोगों से, तो मुझे ना ऐसा लगता है कि मैंने एक फ़ोन कॉल के बाद रियलाइज़ करा कि यार वो दूसरा बंदा वो वॉजंट सेइंग एनीथिंग, एंड वो रूड नहीं था या नहीं थी, बट जस्ट दैट आई वॉज टॉकिंग सो मच एंड आई वॉज शेयरिंग सो मच जस्ट बिकॉज वो ऑकवर्ड साइलेंस ना आए। ट्रू ये होता है, मतलब बिकॉज मेरे को लगता है बिकॉज ऑफ चाइल्डहुड ब्लॉकेज और समथिंग जो हो जाती है ना चाइल्डहुड में, एंड ये हमारा तब से ही चला आ रहा है। एंड बिकॉज वी बोथ फील द सेम, लाइक इफ वी आर टॉकिंग टू समवन यू फील लाइक यार हमारे साथ अगर कोई बात कर रहा ना वो बोर ना हो जाए, मैं छोड़कर ना चल जाए। मे बी अबैंडनमेंट इशूज होते हैं शायद, बट मैंने जेन्युइनली इस बार बहुत कॉशियसली वर्क करा। एंड अगर मेरे को कहीं पर भी लगता था ना, ऐसा आता था ना, वो आता है ना छोटा सा पॉपअप होता है बबल में, ओह दे आर गेटिंग बोर्ड, मेरे को लगता था उसको मैं बबल को ऐसे फोड़ती थी और फिर मैं चुप हो जाती थी। अगर वो लोग बोर हो रहे हैं तो वो खुद बोले ना, उनको बोलना होगा तो वो लोग खुद बोलेंगे, मैं क्यों बोलूं। और ये पता है थेरेपी में एक टेक्निक बताई जाती है कि जैसे आपके पास कभी ऐसी थॉट्स आ रही है ना, जैसे जो आपको थॉट्स बुली करती हैं इन अ वे, है ना, यू आर बैड, यू आर इनसिक्योर, यू आर दिस, यू आर दैट, यू डोंट लुक गुड, यू आर नॉट वर्दी इनफ। तो जैसे अगर वो थॉट आपको बुली कर रही है ना, उसमें थेरेपिस्ट यूजुअली सेज कि आप उसको वापस वो करो, बुली करो इन अ वे कि यू आर अ बुली, स्टॉप, यहाँ से चले इन अ वे, जैसे जो तू बोली ना बबल वाला पॉप करने वाला, इन अ वे आप अपनी थॉट को वो कर रहे हो, वापस बोल के चुप करा रहे हो, which is nice. What would constitute a perfect day for you? A perfect day for me, Nice question, ना, I'm liking it, है ना? a perfect day for me would be waking up early. हाँ, मतलब वही जो अभी जो तू रूटीन के लिए मुझे बोल रही थी, दैट वुड बी द परफेक्ट डे फॉर मी, कि वेकिंग अप अर्ली, फिनिशिंग माई वर्क ऑन टाइम, गोइंग टू जिम एंड देन टेकिंग रेस्ट, और मतलब फैमिली के साथ 1 घंटा स्पेंड करो, उसके बाद देन गो आउट एंड पार्टी विद फ्रेंड्स और चिल विद फ्रेंड्स। दैट वुड बी द परफेक्ट डे फॉर मी। nice. I think the day when I'm not stressed out, happy, ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं ये करूँ, but if I'm happy and at peace, I think that'll be the perfect day. कि मैं बस ऐसे कुछ ऐसे डेज नहीं होते when you feel like जिंदगी कितनी अच्छी है, ऐसे नहीं लगता? ना मेरे माइंड में आया था कि ऐसा कुछ डे जहाँ पर यही वाला कि एट पीस एंड कुछ ना करे तब भी एट पीस, बट फिर मेरे को रियलाइज हुआ ये ऐसा हो मतलब पॉसिबल नहीं है मेरी लाइफ में या फिर हमारी लाइफ में, बिकॉज वी गेट सो स्ट्रेस व्हेनेवर वी सिट एट होम, हमें ऐसा लगता है हमने कुछ नहीं करा करना चाहिए। इसलिए मैंने अपना परफेक्ट डे ही ऐसे कोट करा जो मुझे पता है कि मेरे माइंड को भी स्ट्रेस नहीं होगा। हाँ, बट वही मैं कह रही हूँ कि मेरे को ऐसा कुछ चाहिए, मतलब जिस दिन बिकॉज आई एम वेरी हाइपर एक्टिव, my mind is very hyperactive. Physically I'm not hyperactive at all, but I want something just relaxing, and चाहे मैं कुछ भी ना कर रही हूँ ना, just my mind is at peace, कुछ नहीं बोल रहा है मेरा माइंड मुझे ये कर वो कर, मैं आराम से बैठी हूँ, enjoy कर रही हूँ शुगर के साथ, मम्मा पापा के साथ, तेरे साथ, ऐसा। When did you last sing to yourself or to someone else? सिंग मैंने कार में ऐसे ही करा है। कल गा रहे थे सीएम गाना, सुनो आयशा। हाँ वही कार वाला ही, वो तो हर दिन ही करते हैं लास्ट night, yeah. If you were able to live to the age of 90 and retain either the mind or body of a 30-year-old for the last 60 years of your life, हाँ ऑब्वियसली माइंड क्यों चाहेगा ना कोई, क्योंकि माइंड तो इतने अच्छे वे में ग्रो करता है आपका, मच्योर होते रहते हो। लाइक अब मैं तो कभी नहीं जाना चाहूँगी 10-year-old वाली कृतिका के पास, बहुत मेस्ड अप थी वो। बट या आई एम सो हैप्पी कि कैसे लाइफ ना इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं ना, आपको कभी लगता है कि ओ मे बी शायद मैं ही यूनिक हूँ, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा। डोंट टेल मी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था गाइस, हो रहा था। आप हमारे साथ बने रहिए, मैं कह रही हूँ। ऐसा लगता है ना आपको कि यार ये शायद एक्सपीरियंस मेरे साथ ही हो रहा है, बट
जैसे हम क्लोजर टू 30s मैं जाके कभी पढ़ती हूँ ना, सब लोग लिखते हैं मेरी 20s से मेरे 30s इतने बेटर हैं, वो तो मुझे ऐसा लगता है ओ वाओ, मतलब एवरीवन फील्स दैट, नो मैटर लाइक yes I've faced a lot of things in my life in the past 7 8 9 whatever years, but I feel I'm much stronger, मैं mentally बहुत grow कर रही हूँ and I'm much happier that ways कि True, and I feel like 20s and 30s जो आपके years होते हैं ना, वो एक तरीके से basically learning years होते हैं, and after 30 you start living your life the way you want to. yeah 20 to 30 में आप फिगर आउट कर चुके होते हो इतनी चीज़ें, फिक्स कर चुके होते हो बहुत चीज़ों को, अपने इमोशंस को, अपने माइंड को, कि आफ्टर 30 यू एक्चुअली स्टार्ट लिविंग योर लाइफ द वे यू वांट टू, बिकॉज आपका माइंड और आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में होती है, मुझे लगता है ज़्यादा 20 to 30 के बीच में जितना इश्यूज होते हैं उतना 30 के बाद नहीं होते. सुष्मिता सेन वाज आल्सो सेइंग दिस कि आई लव व्हेन आई टर्न 30 एंड मेरे जो 30 के बाद के ईयर्स थे ना, आई एम एंजॉइंग इट. मेरे उससे पहले जो थे मैं स्ट्रगल और इतनी सारी चीज़ें फिक्स करनी पड़ती थी, इतनी सारी चीज़ें देखी थी, बट उसके बाद जब ये बोला था कि आफ्टर 30 माई ब्रेन काम डाउन एंड आई स्टार्टेड फीलिंग थिंग्स, एंड अब मुझे लगता है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है एंड आई कैन कंट्रोल द शिट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. 30s वाले लाइफ के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड एंड यू शुड ऑल्सो बी एक्साइटेड फॉर आफ्टर 30 लाइफ. इवन आई एम एक्साइटेड. मुझे ऐसा लगता है लाइक जब when you're younger ना, मतलब obviously my life was very different. At 21 I was working and I was exposed to so many different things, events, meeting new people, working for yourself, invoices. मतलब मैं अपना करियर भी जब बना रही थी ना, तो मुझे ऐसा था कि I don't want to do this, I don't want to meet new people, but I had to because मुझे अपना करियर भी ग्रो करना था. तो दो पैरेलल लाइंस चलती रहती थी मेरे दिमाग में, तो वो फोर्सफुली कर करके ना, बोलते हैं ना अपने कंफर्ट जोन से ज़बरदस्ती बाहर जाओ. येस, बहुत बार ऐसा हुआ था कि किसी को पता भी नहीं. आई थिंक मैं इवेंट्स वगैरह पे गई हूँ, वहाँ पर कभी ऐसा भी मुझे बहुत लोनली फील हुआ है, घर आके कितनी बार मेरा ब्रेक डाउन भी हुआ है, बट आई बिकेम सो मच स्ट्रॉन्गर. जैसे आज को मुझे टू बी ऑनेस्ट इतना नहीं पता मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, बट आई एम मच बेटर देन बिफोर. लाइक मुझे अब कोई कहीं भी भेज देना, आई कैन स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ. मतलब आई कैन टॉक टू पीपल, आई कैन होल्ड अ कॉन्वर्सेशन, आई कैन इंटरेक्ट विद ब्रांड्स एंड पीपल, एंड मतलब मुझे ऐसा लगता है matured as a person so much, and that's really nice to know कि I know what I want. ऐसा. Oh, do you have a secret hunch about how you will die? Oh God, this is so toxic. अभी तो नहीं मरना गाइस. बहुत लंबी लाइफ है, बट तो मेरे हमेशा माइंड में ऐसे रहता है कि आई एम ड्राउनिंग और ये वो, मैं बहुत आई एम वेरी स्कैर्ड वाटर से. तो अब मेरे माइंड में हमेशा रहता है कि ऐसा होगा या फिर सम चेन डाउन एंड ऐसा ये वो, बट मुझे ऐसे कभी करना नहीं है. लाइक इंट्यूशन तो नहीं है ऐसी, बट हाँ एक नाइटमेयर और एक बैड थॉट है कि ऐसा लगता है कि ऐसा होगा, बट आई रियली वांट टू डाई अ नेचुरल डेथ. मतलब मुझे ऐसा लगता है सबसे पेनलेस तब होता है while you're sleeping. And वो ना, मतलब I don't want to talk about. Name 3 things you and your partner appear to have in common. तो partner अभी तेरे लिए मैं हूँ. व्हाट 3 तेरे what? नहीं, मेरे को लगता है हम दोनों बहुत ऑपोजिट है. यार वेरी ऑपोजिट. वर्क एथिक को ले लो, उस पे ऑपोजिट है. एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट ले ले, वो ऑपोजिट है. मैं एक्सट्रोवर्ट हुई नहीं, मैं बिल्कुल. आई एम एम्बीवर्ट. चल फिर भी अलग ही हुआ. हाँ, मैं सिचुएशंस को देखकर अपना वो बदल लेती हूँ. क्या कॉमन है हमें? तेरे माइंड में कुछ आ रहा है? जैसे द वे वी स्पेंड आवर टाइम, आई थिंक वो बहुत कॉमन है. द वे वी फंक्शन. गाइस हमें कुछ मिल नहीं रहा हमारे में कॉमन. मतलब हम दोनों को ट्रैवल करते हुए एक्सप्लोर करना, एंड वी लाइक दिस पार्ट. वही तो कि हम उसमें आ गया ना टाइम स्पेंडिंग में, वो हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम कैसे स्पेंड करते हैं वो नहीं, बट वो टाइम हम दोनों के साथ नहीं, वैसे भी हमें पसंद है ना ट्रैवलिंग जैसे हम करते हैं. हाँ. तो ये कॉमन है आई थिंक हम दोनों में. वी बोथ लव डॉग्स. वी बोथ लव राजमा चावल. वी बोथ लव राजमा चावल. हमारे फूड टेस्ट बहुत सिमिलर है. फूड टेस्ट बहुत सिमिलर है. काफी सिमिलर है. हमारे कपड़ों का साइज सिमिलर है. क्लोथ्स की चॉइसेस काफी सिमिलर है. ऐसा होता है, इतनी बार कृतिका ज़ारा से ऑनलाइन ऑर्डर करा होता है, मैंने भी करा होता है, वो सेम आ जाता है कभी, फिर मैं रिटर्न करती है. और हमारा शू साइज सेम है. 38. यस. व्हाट एल्स? हमारा हम दोनों क्या स्कार है? दोनों क्या चीक पे स्कार है? स्कार नहीं है, ये पिगमेंटेशन जेनेटिकली है, जो भी है तो सेम. हम दोनों को ये भी अच्छा लगता है दैट वी आर वर्किंग एंड वी आर हैविंग आवर ओन टाइम, एंड वी लाइक वाचिंग सीरीज टुगेदर. सो या चलो काफी हो गया. बट ऐसे कोई क्वालिटी और वो कॉमन नहीं है. वी आर वेरी ऑपोजिट. जैसे इसको बीचेस पसंद है, आई लव माउंटेन्स, तो इन दैट वी आर वेरी ऑपोजिट. If you could wake up tomorrow having gained any one quality, what would it be? I would not like to give a fuck about anything. ये quality लाना चाहूँगी. Because I think the happiest people are actually like that. They don't give a fuck about anything. मतलब कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, मुझे ये करना है तो मैं करूँगा. लोगों के ओपिनियन से मैटर. I think वो बेस्ट लीडर्स होते हैं, क्योंकि इमेजिन इफ यू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स वगैरह में भी उनको कैसे ब्लाइंडर्स लगाने पड़ते, किधर से कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा था. सो या वन क्वालिटी. बोलते हैं ना हॉर्स की तरह सीधा चलते रहो बस. या एंड राइट सबसे ज्यादा सक्सेसफुल वो लोग होते हैं. हाँ. या सो आई वुड वांट दैट. आई वुड वांट डिसिप्लिन. ओह या क्वालिटी. डिसिप्लिन very much needed in our lives. So I would really want that. Yeah. Okay. For what in your life do you feel most grateful?
फॉर द फैमिली आई हैव इज वेरी सपोर्टिव एंड इन अ वे कि मतलब मेरे को कभी भी किसी चीज़ के लिए कुछ भी बोलना नहीं पड़ता. मतलब इफ आई वांट टू डू समथिंग मुझे पता मान जाएंगे, कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है. सो इन दैट वे माई फैमिली इज वेरी गुड. देयर आर सो मेनी थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर. आई एम ग्रेटफुल फॉर द बॉन्ड दैट वी शेयर. टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, योर सिबलिंग बॉन्ड हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज वंस मतलब आपका वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, यू वॉन्ट टेक एनी एक्सटीरियर ओपिनियंस फॉर दैट मैटर. ओपिनियंस इन अ सेंस कि जब आपकी लाइफ में कुछ भी होता है ना, गो टू योर फ्रेंड और या फिर कहीं पर भी आप बाहर एक वैलिडेशन लेते हो. अगर आपको आपकी सिबलिंग से इतना वो बॉन्ड है और वो की साइड से आपको वैलिडेशन मिल रही है ऑलरेडी, तो देन यू हैव द सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू. उसने तो मुझे बोल दिया ना, तो आपका हल्का सा कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाता है. सो ग्रेटफुल फॉर द बॉन्ड वी हैव. सेकंड, आई एम ग्रेटफुल फॉर द लाइफ आई एम लिविंग एंड द वर्क आई एम डूइंग. आई एम अर्निंग एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट. आई थिंक मतलब तूने सब कुछ मेंशन कर दिया जो मैं बोलना चाहती हूँ, बट आई थिंक द फैमिली वाला थिंग तूने बड़ी सही कोट करा है. नोबडी नोज द काइंड ऑफ बॉन्ड वी हैव. यस, सबके अपने आपस में ऐसा. सम डेज आर लाइक दैट व्हेन आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, और सम डेज यू वांट टू स्पेंड योर टाइम अलोन. बट आई फील मेरी लाइफ में कुछ भी अगर गलत भी हुआ है ना, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि यार मैं ना एक्सप्लेन करूंगी तो शायद वो समझ जाएंगे. जैसे मैं डर के ना बैठ नहीं गई. जैसे कब कितने सारे लोग होते हैं और आई फील सॉरी फॉर देम कि वो शेयर नहीं कर सकते कि यार मुझसे गलती हो गई, या फिर मतलब गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, या फिर मेरे साथ ये हो रहा है मैं आपको बता नहीं सकती थी. सो आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. या हमारा बॉन्ड, वर्क, एंड आई थिंक जो तूने सब मेंशन कर दिया, आई डोंट वांट टू रिपीट दैट, द सेम थिंग्स. आई थिंक फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. Take 4 minutes and tell your partner your life story in as much detail as possible. Wow, this is nice. Life story. Yeah. Sissy, you start. No, Sissy, मैंने पढ़ा है. I'll get an idea how to say it. Hi, I'm Kritika. I was born and raised in Delhi, and I was a shy kid, introvert kid. I wanted to be something. I always had big dreams in my mind. I was always the underdog, पीछे बैठ के ऐसे करने वाला कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ आता भी नहीं था. But I always wanted to perform जब मेरे आसपास कोई मुझे देखे ना. And I always had this idea in my head, and I still remember that scene in my head right now. मैं kitchen slab पे बैठी थी, and मैंने अपने mind में ना बस सोचा था. I think I was इन 7th और 8th स्टैंडर्ड की एक दिन ना मैं कुछ बन के दिखाऊंगी जो मैं अभी बोल नहीं पा रही ना, उस टाइम पे मैं होंगी, एंड एवरीवन विल रिस्पेक्ट मी, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ दैट किड. मतलब उस वापस जाके मैं एक वो देना चाहती हूँ उसको कि यार तेरी ड्रीम्स पूरी हो जाएंगी. जस्ट keep going, and yeah, I'm so grateful, and I am working on my dream. Like, I'm in this field which is very different for a lot of people, but when I started it was very new. A lot of people are getting to know about it, and it's accepted everywhere. And I have a nice family. I had 3 dogs. One passed away this year. I just get so happy around dogs. And I have a great family. I have the best sister. And yes, I've had some setbacks in my life, but that only made me stronger. And I've traveled to 23 countries. Oh, your biggest flex. I love water sports. I want to do skydiving, and I want to achieve much more in my life. अभी ऐसा लग रहा है 20-30% ऑफ माई लाइफ हुआ है मुझे और. True that. तू बोलना. मैं क्या बताऊँ. जैसे मैंने स्टार्ट करे तू भी स्टार्ट कर. तेरे माइंड में वो दीक्षा कैसी थी स्टार्ट से? यार मेरे को नहीं आ रहा माइंड में. बोलेगी नहीं, शर्माना नहीं है. मैं ही तो बैठी हूँ. शर्मा नहीं रही हूँ. मेरे को वैसे ही तेरी शक्ल से लग रहा है कि तू शर्मा रही है. नहीं, तेरी कैसे मैं शर्मा नहीं रही. मेरे को माइंड में कुछ नहीं आ रहा. कुछ ना तो स्टार्ट कर. तू बचपन की फर्स्ट मेमोरी से स्टार्ट कर. क्या मेमोरी भी नहीं आ रही है. ऐसा स्टेज वो प्रेशर हो रहा है अभी ऐसा. राइट हो रहा है दीक्षा. हाय गाइस, आई एम दीक्षा एंड मैं शुरू से ऐसी मतलब बहुत पैम्पर्ड वो रही हूँ घर पे. एंड बिकॉज ऑफ दिस पैम्परिंग आई फील कि मैं स्कूल और इसमें भी, जैसे तूने बोला अंडरडॉग और ये वो, मैं भी अंडरडॉग थी बिकॉज आई वॉज वेरी स्केर्ड ऑफ द टीचर्स एंड उनके परसेप्शंस को लेकर मेरे लिए, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज दिस किड हु वाज वेरी क्लीन. एंड ऐसा होता था ना स्कूल में गाइस, जो भी मतलब गुड लुकिंग ऐसा कुछ होता था उसको ज्यादा वो करा जाता था कि हाँ, मुझे ऐसा लगता ज़्यादा बुली करा जाता था. मुझे लगता है टीचर्स के पर्सपेक्टिव से देखो तो वो हमारा स्कूल ऐसा था. मुझे नहीं पता. एंड यू वर द प्रिटीएस्ट किड. मतलब थैंक्स बट हमारा स्कूल इतना वो ज़्यादा बुरा था कि वो जो भी ऐसे कुछ होता था थोड़ा सा उनको बहुत ज़्यादा बुली करते थे ना. वे तो टीचर्स वगैरह कभी मुझे पसंद नहीं करती थी. सो आई ऑलवेज हैड दिस फियर फ्रॉम टीचर्स. एंड मेरे को आई थिंक सो कॉलेज में भी ये सेम फियर रहा है, जबकि मेरे सारे फ्रेंड्स वगैरह ऐसे टीचर्स के सामने अच्छा अटेंडेंस इतना फन करते थे. बट आई ऑलवेज दिस किड जो बहुत डरती थी प्रोफेसर वगैरह से. एंड मेरे को लग रहा है आई ऑलवेज बिन दैट वन कि बिकॉज ऑफ आवर स्कूल्स एंड एवरीथिंग तो मैं हमेशा से ऐसी रही हूँ. एंड आई नेवर एक्सेप्टेड द वे आई वॉज. आई वॉज वेरी गुड लुकिंग, ट्रस्ट मी. मैं अभी देखती हूँ, बट आई नेवर एक्सेप्टेड द वे आई वॉज बिकॉज ऑफ
all the things which happened. Then I started working, and when I was 17, because of Kritika, so we have 4 years age gap, so I started working with her only. So tab se I've been earning, and I love my life because I've started earning, and that gave me a different kind of confidence. So I'm very happy and grateful for the life I have now, and I know I can achieve anything I want. I can get anything I want in my life. So yeah, it's pretty good. Started with a good note, and I hope it will end with a good note. ये क्या बात है, इतना अच्छा तो बोल दिया सीसी. I always wanted to be an actor, but I never pursued it. You want to do it? No, I don't want to. Oh, do you it. don't want to do it. हाँ. Why? Their lives are very messed up. It's very messed up. आप Snapchat पे भी देखो, and already इतने opinions है सबके my life में. I don't want to be that person. मतलब इतनी limelight में नहीं आना है, because I enjoy this life Yeah. that I have. आई थिंक मुझे आई रियली वॉन्ट टू स्काई डाइविंग, वो मैंने अभी तक नहीं करा है, मेरा कब से ड्रीम है. आई वॉन्ट टू बाय अ हाउस. अभी मैं बकेट लिस्ट गोल्स ही शुरू हो गया मेरी लाइफ के, एंड आई वॉन्ट टू गेट अ कार. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं ये सब चीज़ें ना सिर्फ डिले करती रही कि आई गेट दिस आफ्टर दैट, आई गेट दिस आफ्टर आई गेट सेटल्ड और ये सब मुझे. बट वाई डू वी हैव टू वेट? इफ़ आप अपनी ड्रीम्स किसी चीज़ के पीछे, टाइम के पीछे रोक के बैठे तो गो आफ्टर इट. एंड देन वन थिंग जो मेरे में आई डोंट नो पता नहीं कब कार्य जाएगा, मुझे ऐसे टेक टॉक देने का बहुत मन है, एंड आई वांट टू शेयर माय लाइफ स्टोरी इन अ वे. बट आई नो ऐसा था ना आपके बचपन में कोई एक इंसिडेंस हो जाता. मैं एक बार डिबेट में गई थी, आई फ्रोज देयर. मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे यहाँ से भागना है, और मैं सबको देख रही हूँ, सब मुझे देख रहे हैं. अब बोलेगी, अब बोलेगी, अब बोलेगी. मैं ऐसे खड़ी रही, लिटरली मेरी टीचर आई, वो मुझे लेके गई वहाँ से. तब से ना मेरा ब्रेन बहुत फनी था. तब से मेरा ब्रेन मुझे बोलता है यू कांट डू इट, ये वो. तो मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकती. बट आई रियली वांट टू हेल्प समवन विद, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं अगर 20-30 मिनट्स की टॉक पे शायद एक जने को भी, किसी को अपनी स्टोरी से मोटिवेट कर सकूँ. तो आई रियली वांट टू डू दैट. ओके, लास्ट क्वेश्चन गाइस. बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम और किसी पॉडकास्ट में करेंगे. ओह, थोड़ा डार्क है ये. बट इफ़ यू न्यू दैट इन 1 year you would die suddenly, would you change anything about the way you're now living? Why? Yeah, I will stop thinking about things and start focusing on myself and my wishes. ऐसा. बट तुझे लगता है तू अभी नहीं करती? हाँ, मुझे लगता है कि मैं ऐसे सेटबैक ले लेती हूँ जितना मुझे करना चाहिए, कि मैं लोगों के ओपिनियंस वगैरह या वो फिर भी मैटर करता है. बट अगर पता हो कि 1 साल है तो फिर आई डोंट गिव अ फक दैट बिच विल कम आउट. तो फिर ऐसा सा ऑब्वियसली. आई थिंक दैट, एंड आई वुड लाइक टू ट्रैवल विद माई फैमिली एवरी मंथ. मतलब मैं हर जगह कहीं ट्रैवल और हर स्पॉट, हर चीज़ करूँगी. जो भी मेरी बकेट लिस्ट थी सारी वो कंप्लीट करना चाहूँगी. एंड आई वुड लाइक टू ईट, शॉप, आई वुड लाइक टू ईट अ लॉट. प्लीज. हाँ, सारी पाव भाजी, राजमा चावल, मेरे को सारी कुछ ट्राई करनी है पूरे 1 साल में. पास्ता, नॉर्दर्न लाइट्स भी देखनी है. ओह हाँ हाँ. और मैं एटलीस्ट फॉर अ मंथ ना मैं वैन में ट्रैवल करना चाहती हूँ. इन दैट क्यूट सी वैन, वो बड़ा क्यूट होता है, इसके अंदर ही सब कुछ होता है ना. बेड वगैरह. दीक्षा बोले गुड फॉर यू, आई डोंट वांट टू डू इट. ओके गाइस, विद दैट वी आर गोना एंड द पॉडकास्ट. होप यू लाइक्ड इट. इफ यू डिड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब if you are watching this on YouTube, and if you're listening to it on Spotify, please rate us. And yeah, we'll see you in the next one. Bye guys.